A very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 7. The chapter name is control and coordination. So in this chapter we are going to see the nervous system, how it's doing the activity or the reflex actions. So let's start this chapter with a short introduction of the control and coordination. In the previous chapter we looked at the process involved in the maintenance function in the living organisms. There we had started with the notion we all have that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact the result of the growth, as in plants. A seed germinates and grows, and we can see that the seeding moves over a course of a few days. It pushes the soil aside and comes out. But if its growth were to be stopped, the movement would not happen. Some movement, as in many animals and some plants, are not connected with growth. A cat running, children playing on swings, buffaloes chewing cud, these are not movements caused by a growth. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि आपने पढ़ा है किस तरह से लाइफ प्रोसेस जो है चल रही है, मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के वो किस तरह से चल रहे हैं. तो बेसिकली क्या है, सारी चीज़ें मोशन है, चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं क्योंकि वो ज़िंदा है, लाइव हैं. और भी चीज़ें जैसे आपने सीड्स को देखा, आपने सॉइल में डाला, उसके बाद क्या हो रहा है, सॉइल से सीड जो है वो ऊपर आ रहा है, फूट रहा है, उसमें से फिर पौधा निकल रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं ग्रोथ की निशानी है, यानी दे आर लिविंग. Why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of the movement as a response to change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. Not only that, we also think of the movement as an attempt by living organism to use the changes in their environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of the swinging. Buffaloes chew and cut to help break up the food so as to be able to digest is better when the bright light is focused on our eyes, or when we touch a hot object we detect the change and respond to it with a movement in order to protect ourselves. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ देखिए कहीं ना कहीं जो है आपने कई सारे विजिबल मोमेंट्स जो हैं उसको देख के नोटिस किया होगा. इसके साथ साथ कई सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो भी उसी तरह से हैं. इसके साथ साथ कई तरह के एडवांटेजेस जो हैं आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं. अगर हम बच्चों की बात करें, आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, बफेलोस को आपने जो है च्यू करते हुए देखा है. तो बेसिकली सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है इनका अपनी ही बॉडी पे है. जैसे कि आपने देखा बफेलो खाते वक्त खा लेती है, बट उसके बाद जब उसे च्यू करना होता है तो वो क्या करती है, उसे जो सॉलो किया गया है उसने वापस उसने अपने माउथ में लिया और उसे च्यू करना स्टार्ट किया. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी हैं और कई तरह के चेंजेस जो हैं वो हम अपनी ही बॉडी में डिटेक्ट भी कर पाते हैं. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Each in response, when we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only correct movement and response. In other words, living organism must use a system providing a control and coordination. In keeping with the general principles of the body organization, in a multicellular organism, specialized tissue are used to provide this control and coordination activity. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपकी सारी एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है और ये तभी उसका क्या है एक्शन परफॉर्म कर रही है. तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन हो रही हैं और बॉडी का ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है कहीं ना कहीं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो पा रहा है. यानी नर्वस सिस्टम जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सारी एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है. अब चलिए हम देखते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम. In animals, such control and coordination are provided by a nervous and the muscular tissue, which we have studied in class 9. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from the environment is detected by the specialized tips of some nervous cells. These receptors are usually located in our sense organs, such as the inner ear and the nose and the tongue and so on.
So the gustatory receptors will detect taste while olfactory receptor will detect smell. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है। आपने देखा है अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसे उठाना ज़रूरी भी है और डेंजरस भी है, हम फिर भी कभी कभी उठा लेते हैं, तो क्या होता है हमें गर्म लगता है, हम तुरंत अपने हाथ से उसे छोड़ देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमें हेल्प कर रहा है ये जानने में कि वो ऑब्जेक्ट जो है गर्म है और इससे हमें तकलीफ़ हो सकती है, तो हम उसे क्या करते हैं, इमीडिएटली छोड़ देते हैं हमारे एक्शन से। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से, नर्व सेल्स से डिटेक्ट होनी और सारी टिप्स हमें मिल रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी बॉडी में कई तरह रिसेप्टर्स भी होते हैं जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि जो ईयर है, नोज़ है, टंग है, और ये सारे क्या है, ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं। इसमें भी जो है गस्टोटरी रिसेप्टर है जो कि हमें सेंस ऑफ टेस्ट देता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है जो कि हमें सेंस ऑफ स्मेल देता है। तो ये इस तरह से काम करते हैं, कोई भी चीज़ें हम पहचान पाते हैं, जैसे कि रोज़ की स्मेल है या फिर ये फ्रूटी स्मेल है, ये हम कैसे पहचान रहे हैं, हम इसी की हेल्प से पहचान पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस शो की गई हैं जिसमें बताया गया है कि नर्वस सेल्स किस तरह से दिख रहे हैं, कैपिलरीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसा, एक्सॉन, मस्कुल फाइबर, कैपिलरीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हम जानते हैं जिसे एज एनर्जी हाउस कहा जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दिस information acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electric impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap and synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपको कभी किसी मच्छर ने काटा, क्या आप देख पाते कि मच्छर ने कहाँ काटा? नहीं, लेकिन जैसे आपको कोई काट लेता है तो आपका हाथ ठीक उसी जगह जाता है जहाँ मच्छर ने काटा है। तो क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब बॉडी जो है उस सिग्नल को, उस सेंस को क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, यानी तुरंत हमारा दिमाग जो है हमें एक्शन दे रहा है हमारे दूसरे हाथ को कि तुम्हें वहाँ पे काटा गया, तुम्हें उसे क्या करना है, हटाना है। तो ये किसी तरह एक तरह का कह सकते हैं हम केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी जगह जैसे जो है इन सिनेप्सिस में पहुँचता है और सिनेप्सिस में पहुँचने के बाद न्यूरॉन जो है इसे कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं और ये इम्पल्स जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल होता है। फिर नेसेसरी जो एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होना चाहिए, वो हम कर पाते हैं। It is thus no surprise that the nervous tissue is made up of an organized network of the nerve cells or the neurons, and it is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. Look at figure 7.1a and identify the parts of a neuron where information is acquired, through which the information travel as an electrical impulse and where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. अब देखिए यहाँ पे जो अब बताया गया है, यहाँ पे जो डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, उसके बाद वो कैसे हमारी कैपिलरीज के थ्रू, मतलब ये कैसे एक सिग्नल क्रिएट कर रहा है और फिर हमारी क्या कर रहा है, उसे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो हमारी पूरी बॉडी में उसे फैला रहा है ताकि एक जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जा सके। तो वो उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हो रही है, कहाँ जा रही है। तो देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर्ड कहाँ से होती है, वो कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम है मेन, वहाँ से वो क्या होती है, हमें पता चलती है हमारी नर्वस सिस्टम से। उसके बाद जो भी है वो अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में इम्पल्सेस जो है ट्रांसमिट होती हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। Now we see the activity 7.1. Just read it out here. We'll see the observation directly. Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about the possible explanation for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आप अगर आपकी नाक जो है वो बंद हो जाए तो क्या आप सेंस ऑफ स्मेल से पहचान सकते हैं कि क्या मीठा है या फिर क्या नमकीन? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाक हमारी है ये हमें सेंस ऑफ स्मेल देती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वो बंद हो जाए तो फिर भी हम कहीं ना कहीं उससे पहचान लें। हाँ, टेस्ट करके पहचानना एक अलग बात है, बट स्मेल करके तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ वी सी व्हाट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए जो ये है यहाँ पे हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन में आखिर होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। Reflex is a word used very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है
जो कि हम सडन एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जब किसी कुछ होता है एनवायरनमेंट में। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ अ बस रिफ्लेक्सली, जैसे कि हम कहते हैं कि हम जो है बस से जब हम जंप किया तुरंत, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, या फिर आग के पास से मैंने अपना हाथ जो है तुरंत हटा लिया। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, या फिर जब मुझे बहुत भूख लगी है तो मेरे मुँह से क्या है पानी निकलने लगा reflexly. What exactly do you mean? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ों से आपको क्या समझ रहा है, तो बेसिकली यही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो हम बिना सोचे समझे हम तुरंत कर ले रहे हैं, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. Yes, these are situations where we responding with the same action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? तो हमें इसी में देखना है कि किस तरह से जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव किया जा सकता है सिचुएशन में. Let us consider this further. Take one for example. Touching a flame is an urgent and a dangerous situation for us, or in fact for a many animal. हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस. अब जैसे कि बताया गया है कि आग को छूना हमारे लिए ज़रूरी भी है कभी कभी और ख़तरनाक भी है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कई तरह के एनिमल्स के लिए. तो किस तरह का रिस्पॉन्स जो है आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं. वन स्विंगली सिंपली वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न. ये सिंपल चीज़ है कि उस चीज़ में डालने के पहले कि हम ये सोचें कि अगर हम जल गए तो किस तरह का पेन और क्या दर्द हमें महसूस करना होगा. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैन इज़ हाउ लॉन्ग नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर. और किस तरह का जो नर्व इम्पल्स जो है वो भेजा जाएगा हमारी बॉडी में, और किस तरह से वो बात करेगा. थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज़ बाउंडेड टू इन्वॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. तो ये जो है थिंकिंग एक तरह की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये इंटरेक्शन जो है कई सारी नर्व इम्पल्सेस के बीच में और कई सारी न्यूरॉन्स के बीच में होगा. If in this case, it is no surprise that is a thinking tissue is our body consists of a dense network and intricately arranged neurons. अब ये जो है थिंकिंग सरप्राइज जो है टिश्यू, ये क्या कंसिस्ट करता है, बहुत सारे डेंस नेटवर्क को कंसिस्ट करता है जो कि अरेंज्ड है न्यूरॉन्स में. It's a site in the forward end of the skull and receives a signal from all over the body, which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerve coming from a various part of the body. Similarly, if the part of the brain is instruct muscles to move, nerve must carry this signal back to the different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हम सोचते हैं तो किस तरह से परफॉर्म होता है. मतलब अगर हम सोच रहे हैं और सोचने के बावजूद मतलब बेसिकली हम कब किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है. मान के चलिए अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ और हमें तुरंत ये सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि वो हाथ हमें वहाँ से हटाना है, तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जला देंगे अपनी बॉडी का. मान के चलिए अगर एक एग्जांपल हम और लें, ये सिग्नल्स अगर इम्पल्सेस जो हैं ये टाइम पे ट्रैवल ना करे, टाइम पे हमें पता ना चले, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हम देखेंगे. मान के चलिए कि हमारा हाथ जो है गलती से फ्लेम पे चला गया है, ठीक है. अब हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है कि हमें ये बता सके कि मेरी स्किन जल रही है और मुझे दर्द हो रहा है. इस चीज़ अगर महसूस ना हो, पता ना चले, या फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना जो है सिग्नल ट्रांसमिट हो पाए बॉडी में कि मुझे हाथ वहाँ से तुरंत हटाना है, तो क्या होगा, बेसिकली मेरा हाथ बहुत देर तक जलता चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Of course, reflex arc have involved many involved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have a very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient phase of functioning. In the absence of a true through process, however, even after the complex neuron network have some come into the existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response. अब देखिए जो रिफ्लेक्स आर्क है इनको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स जो है टाइम पे दे सकें. और ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क जो है ये बहुत सारी थिंकिंग भी रखते हैं, मतलब बहुत सोच समझ, बहुत सारी थॉट प्रोसेस जो हैं सारी चीज़ें ये परफॉर्म कर पाते हैं. Can you now trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes?
आप बात किया गया है कि किस तरह ये जो सीक्वेंस है कि अगर ब्राइट लाइट आपकी आँख पे फोकस की जाए तो आप क्या इसका जो किस तरह का सीक्वेंस चेंज हो रहा है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। यहाँ पे उसकी क्वेश्चन की बात की गई है। जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये इमेज वही रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट को आपने छुआ तो किस तरह से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है, आपके ब्रेन तक मैसेज जा रहा है और फिर कैसे आपका हाथ वहाँ से आप खींच रहे हैं। नाउ वी सी द ह्यूमन ब्रेन। Is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not. Since we know that we are thinking beings, the spinal cord is made up of a nerve which some supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and the neural connection. These are concentrated in the brain, which is mainly coordinate the center of the body. The brain and the spinal cord constitute the central nervous system that receive the information from all parts of the body and integrate it. अब देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइन कॉर्ड है क्या? नहीं, सिर्फ उसी का फंक्शन नहीं है बल्कि इसे बहुत तरह के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जिसमें कई तरह की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स हैं, न्यूरल कनेक्शंस हैं, कई तरह की चीज़ें जिस पे ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द बॉडी है कोऑर्डिनेशन का पूरी बॉडी से। तो ब्रेन जो है कई तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है कंस्टिट्यूट करता है, इसके साथ इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, पूरी बॉडी तक जो है उसे पहुंचाता है। तो कई तरह के काम जो है ब्रेन हमारा कर पाता है। We also think about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are examples of the voluntary action which are based on deciding what to do next. जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राइटिंग है, बातें हैं, चेयर को मूव करना है, ताली बजाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी वॉलंटरी एक्शंस हैं और ये पहले से डिसाइडेड की रहती है माइंड में, मतलब कि अब मुझे इसके बाद क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. So the brain also has sent a message to the muscles, and this is the second way in which the nervous system communicates with the muscles. The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consisting of the cranial nerve arising from the brain and the spinal nerve arising from the spinal cord. अब यहाँ बताया गया है कि जो cranial nerve है वो कहाँ से arise हो रही है और जो स्पाइनल नर्व है वो कहाँ से अराइज हो रही है. द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग, एज यू विल एक्सपेक्ट दैट दिस इज accomplished through a complex design with the different parts of the brain responsible for the integrating different inputs and outputs. The brain has the three such major parts of the region, namely the forebrain, midbrain and the hindbrain. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो हमारी बॉडी का इतना जो हमारी ब्रेन का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कई तरह की जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और थिंकिंग सारी चीज़ें परफॉर्म कर पा रहा है, तो ब्रेन के जो है कई तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है जो उसी हिस्सों के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है. द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और जो फोर ब्रेन है ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का जो पूरी तरह से सोचने समझने का काम करता है. इट हैज़ अ रीजन विच रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स, और ये एक ऐसा रीजन है जो बहुत तरह के क्या है सेंसरी इम्पल्सेस को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग. इसके भी कई सारे एरियाज़ है फोर ब्रेन के जो स्पेशलाइज है किस चीज़ की, हेयरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptors as well as with the information that is already stored in the brain based on all this. अब जो भी बाकी की चीज़ें हैं, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है या फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूरे रिसेप्टर्स तक यानी पूरी बॉडी में स्टोर करना ब्रेन में, फिर उसको प्रॉपरली पहुँचाना, ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन है इसी पे, और क्या डिसीजन मेक करना है किस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में. तो ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट है कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स के द्वारा हमारी की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर लेग मसल्स हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग हियरिंग. फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ? द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएट विद हंगर विच इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जैसे कि आपने खाना खाया, आपको कैसे पता चल रहा है कि हाँ आपका पेट भर गया है, क्योंकि कहीं फोर ब्रेन का एक पार्ट जो है वो जो हंगर को डिटेक्ट कर पा रहा है उस सेंटर को, तो वही आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग दे रहा है कि हाँ आपका स्टमक फुल हो गया है और आपको अब खाना बंद करना है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो फोर ब्रेन के थ्रू ही जो है ये कनेक्ट हो मतलब बेसिकली आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और ये उसका जो है सेपरेट पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का.
यहाँ पे देखिए ब्रेन स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें सेरेब्रम है, क्रैनियम है विच इज़ अ स्कल विच इज़ द आउटर मोस्ट शेल, देन द मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड। पॉनस, मेड्यूला और सेरेब्रम जो है ये हैंड ब्रेन के ही टाइप है, और देन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस आर द फोर ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे उनके बारे में बताया गया, और मिड ब्रेन जो है आपको यहाँ पे शो किया गया है, आप जैसे देख सकते हैं जहाँ पे वाइट पोर्शन जो दिखा रहा है। Study the table diagram of the human brain. We have seen that the different parts have a specific functions. Can we find out the functions of each part? आपने अपने ब्रेन का जो है आपने वेल लेवल डायग्राम देखा है, तो क्या अब आप जो है जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं? ये यहाँ पे पूछा गया है। लेट अस लुक एट द अदर यूज़ ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। अब चलिए देखते हैं रिफ्लेक्स का जो अदर वर्ड है वो क्या है, यूज़ करने का क्या रीज़न है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन में जो है ये चीज़ें पढ़ी हैं। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी अ फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। Our heart beat without our thinking about it. In fact, we cannot control this action easily by thinking about them, even if we wanted to. Do we have to think about or remember to breathe or digest the food? So, in between this simple reflex action like change in the size of the pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of a muscle movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All these involuntary action including a blood pressure, salivation and the vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कई तरह के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है किस तरह से हमारी हिंडब्रेन के द्वारा मतलब क्या क्या उसके अंदर आते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आ रही है, सलाइवेशंस है, ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो पा रही है किससे? मेडुला से। और ये किस में है? हिंड ब्रेन में, जो कि ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे हमें तुरंत उल्टी आई और हमने तुरंत उल्टी कर दी। कई बार क्या हो, कई अनसर्टेन सिचुएशन है कि हमें कई बार वॉमिटिंग आती है और हम तुरंत कर देते हैं, पर कई बार क्या बेसिकली होता क्या है, जब भी हमें वॉमिटिंग आती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुँच सके जहाँ पे हम आराम से वॉमिट कर सकें। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये काम मेडुला कर रहा है, यानी वॉमिटिंग और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने का, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आते हैं। थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, जैसे कि थिंकिंग एक्टिविटी है जैसे कि चलना स्ट्रेट लाइन में, टेढ़ा मेढ़ा ना चलना, बाईसाइकिल्स यानी साइकिल को चलाना प्रॉपरली, या पेंसिल को तोड़ना। दीज आर द पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, और यही जो सारी चीज़ें पॉसिबल है क्यों? बिकॉज ऑफ हिंड ब्रेन जो कि सेरेब्रम कहलाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब ये सारी चीज़ें क्या मेंटेन करिए, पॉस्चर और बैलेंस करिए बॉडी को। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ईच ऑफ दिस इवेंट्स फेल टू टेक अ प्लेस इफ़ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अब इमेजिन करो अगर ये सारी चीज़ें बॉडी में एक्शन ना हो पाती, अगर ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करती तो क्या होता, ज़रा सोच के देखिए। अब देखिए बताया गया हाउ आर द टिश्यू प्रोटेक्टेड। अब टिश्यूज़ जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड है हम वो देखेंगे। A dedicated organ like the brain, which is so important for a variety of activity, needs to be careful protected. For this, the body designed so that the brain sits inside the bony box, and inside the bony box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides a further shake of absorption. If you run your hand down to the middle of your back, you will feel a hard, bumpy structure. This is the वर्टिब्रल कॉलम और अ बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो टिश्यूज़ को है कैसे प्रोटेक्ट करें, यानी जो बोनी बॉक्स है ये कहीं ना कहीं क्या करें, टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे बताया गया अगर आप अपने बैक को टच करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो मिडिल का पार्ट है जो अगर आप पहले टच करेंगे तो आपको थोड़ा बम्सी स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी मसल्स मिलेंगे। लेकिन जैसे आप मिडिल पार्ट जो है टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या है, थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो हार्ड बम्सी स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, जो कि बैकबोन है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसे, स्पाइनल कॉर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब जो नर्वस टिश्यू है किस तरह से एक्शन कॉज करता है हम वो यहाँ पे देखेंगे।
So far we have been talking about nervous tissue and how it collects the information, sends it around the body, processes the information, makes the decision based on the information and conveys the decision. So the muscles for action, in the other words, when the action or the movement is to be performed, muscles tissue will do the final job. How do the animal muscle move? When a nerve impulse reaches to the muscles and the muscle fiber must move, how does the muscle cell move? The simplest motion of the movement at the cellular level is the cells will move away, changing their shape so that they shorten. So the next question, how do the muscle cells change their shape? The answer must lie in the chemistry of the cellular component. The muscle cells have a special protein that change both their shape and their arrangements in the cell in the response to the nervous electrical impulses. When this happens, the new arrangement of this protein give the muscle cells a shorter form. Remember when we talked about the muscle tissue in class 9, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles or involuntary muscles based on what we have discussed so far. What do you think differences between this would be? अब देखिए यहाँ पे बताया गया बेसिकली जो मसल्स है आपने देखा है कि मसल्स मूव कर रही है, मसल्स के साइज चेंज हो रहे हैं, मसल्स क्या कर रही है, कई सारे नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो भेज रही है मसल्स तक ताकि जो पर्टिकुलर एक्शन है वो परफॉर्म किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो सिंपलेस्ट मोशन की हो पा रही है या कर की पा जा रही है, कैसे हो रही है, मसल्स अपना साइज़ और शेप कैसे चेंज कर रही है। तो इसमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो इस सारी चीज़ों में हेल्प करता है और ये इनसे कर पाती हैं। तो क्या होता है ये अपने दोनों चीज़ें यानी अपना शेप जो है वो और अपनी जो सेलुलर अरेंजमेंट है यानी जो मस्कुलर अरेंजमेंट है उसे ये इसे दोनों को क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है इन द फॉर द चेंजिंग प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड देन हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये टॉपिक जो है कर चुके हैं, तो ये वाले टॉपिक्स मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में। यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ा दी हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड या वन मोर थिंग, अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर में तो आप आगे पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज पूछ सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। तो जैसा भी रहेगा आप मुझे बताइएगा। बाकी ये चैप्टर की जो टॉपिक्स आने वाले हैं पेपर में वो यहीं तक हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेसिकली देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी जो हम सोच रहे हैं, हम फिर कोई एक्शन कर रहे हैं, हमारा हाथ मूव करना चाहिए, यानी हमारी आँखें अब किधर देखनी है, हम ड्राइव करते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स कैसे पूरे अलर्ट पोजीशन में रहते हैं, यानी हमारा पैर एक्सेलेटर पे होता है, ब्रेक पे होता है, हमारे हाथ जो है ड्राइविंग व्हील हमारे हाथ में होती है, हमारी आंखें पूरी ओर देख रही होती है, कोई आगे तो नहीं है पीछे तो नहीं है। बेसिकली हमारे सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह का इनका कंट्रोल है, किस तरह की कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हमें समझनी है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ख़राब सी चीज़ आपने देख ली जिसे अब आपका देखने का मन नहीं है तो आप तुरंत अपनी आंखें क्या करते हैं वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये कंट्रोल कैसे हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आपका माइंड इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, किसको, आपकी आंखों को, कि तुम्हें वो चीज़ नहीं देखनी, तुम्हें टर्न होना है। तो हमारी आँखें क्या होती है, हम अपना सर टर्न कर लेते हैं और फिर दूसरी जगह देखने लगते हैं। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है कि हमारा ब्रेन जो है यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है और कैसे हम कोई भी एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर द डे।